जी ख्वाजा परवेज साहब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहें अपने आप को। Okay, Kiran, you may Okay. start. जी Assalamu alaikum. My name is Kiran Amer and I am the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology, and today's session is case-based discussions with the experts, and our expert for tonight is Professor Altaf Alam. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are a part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel and link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Janasin Medical University. Uzair will share the Google form at the end of session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session, Professor Retired Altaf Alam, is a former professor and head of Gastroenterology Hepatology Department at Shaikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a medical and dental college, Lahore, Pakistan. Currently, he's working as consultant gastroenterologist, hepatologist, Evercare Hospital, Lahore. He is serving as course director at PARSA ECHO Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of contact, evaluating speakers, and feedback evaluation. We have two cases today. Dr. Mishal will be presenting these cases, so I'll hand over to Dr. Mishal. Dr. Mishal. I think Dr. Oj, are you presenting? Somebody was telling me. No, sir. Dr. Mishal will be presenting right now. Okay, okay, so, fair enough. Dr. Mishal, आप muted हैं. डॉक्टर मिशाल, हमें आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड हैं अभी भी. मेरे ख्याल में is she with us? Let me see. I think dropping. Okay, I think let me जो first case है, as you can see on your screens, this is a 60 years old female with a weight of around 79 kilogram, height 140 centimeter, BMI is calculated to 40.3, and she presents with body aches and pain, epigastric pain and postprandial fullness, heartburn, nausea and constipation for a year. No other comorbidity. So routine labs were done. And here you can see, उज़ैर इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें, ये जो चार्ट है. Here you can see ये जो हमारे पास labs हैं, ये दिसंबर 22 से जनवरी 23 तक हैं. जो complete blood count and renal function are normal. Liver enzymes are disturbed. ALT जो है दिसंबर में 158 and AST 195, and in January it checked again 101 and 195 respectively. Alkaline phosphatase was 168,
and 312 in January. Albumin is a bit lowish, 3.4 and 3.9 respectively, और gamma GT भी इनका high है. So because of impaired LFTs, hepatitis C serological test was positive. She went on to have PCR, and which was around 25 lakh. So तकरीबन 2.5 million unit इनके बनते हैं. You can see the reports of cholesterol. Total cholesterol is 161, triglyceride 88, HDL is 32, LDL is 139, and H. pylori antibody पे मैं कोई comment नहीं करूँगा. So we have this lady with high BMI and the impaired liver function test with positive hepatitis C virus. जी, next आगे चलें उज़ैन. Ultrasound पे there is fatty liver, and APRI score is calculated to be 1.8. And the question is about the significance of APRI here and how to manage this patient. और इसमें थोड़ा सा जो हमारे medical officer, I think उनकी जो inclination थी, that was concerned about fatty liver also. So basically what it seems like कि हमारे पास एक case है, obese lady जिनको fatty liver भी है और hepatitis C भी है. तो we would like to hear from Professor Altaf Alam कि इसको हम किस तरह से अपनी clinical practice में manage करना चाहेंगे. जी सर. Thank you, Asad. Yes, this is not unusual to see in our clinical practice, and that is why they are now trying to devise a new term called overlap syndrome, where fatty liver coexists with other problems like B, C, HIV, medications, etc., etc. So, an overlap syndrome of fatty liver with other liver diseases. यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं उसमें AST is higher than ALT, that is reversal of ALT-AST ratio, which we normally see in viral diseases. ये किस में होता है? One, cirrhosis में, due to any cause, alcoholic hepatitis and alcoholic liver disease. और यहाँ पे अगर आप अल्ट्रासाउंड देखें तो उसमें mildly coarse liver लिखा हुआ है, which is neither here nor there, but APRI score is 1.8. APRI अगर 1.5 से ज़्यादा हो, particularly hepatitis C में, तो ये indicate करता है कि higher grade of fibrosis हो सकता है. लेकिन इस टेस्ट की sensitivity और specificity बहुत high नहीं है. It is around 70 to 75%. So ये हर चीज का हल नहीं है. ऐसी सिचुएशन में फाइब्रो स्कैन करके कंफर्म करना चाहिए. जैसे आपने देखा कि इस लेडी का वेट 79 सिर्फ 140 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब यह है कि BMI is 40. हमारे साउथ ईस्ट एशियंस में अगर BMI more than 25 हो तो ये ओबीज की कैटेगरी में आ जाता है. कॉकेशियंस के लिए 30 से ज्यादा, ये तो मॉर्बिडली ओबीज कैटेगरी में है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि इसका फैटी लिवर है. यहाँ पर आप शुगर भी देख रहे हैं, ब्लड शुगर इज 191. अगेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नेफल्ड में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, insulin resistance, type 2 diabetes, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, low HDL, high LDL, ये सारे features होते हैं. और it is important to look at all these criteria, क्योंकि जब आपकी ट्रीटमेंट की बारी आएगी तो आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ट्रीट नहीं करेंगे, आप को एग्जिस्टिंग कंडीशंस को भी ट्रीट करेंगे, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज,
हाइपरटेंशन जिसमें डिसलिपिडीमियाज, ये सारी चीजें शामिल हैं। सो अब इस पर्टिकुलर पेशेंट में मैं फर्दर क्या करूंगा, HbA1c जरूर करनी चाहिए क्योंकि शुगर आप देख रहे हैं 191 है। यहां पर मैंने देखा है कि NAS स्कोर 2 लिखा हुआ था। असद, इसकी लिवर बायोप्सी हुई है? क्योंकि NAS स्कोर तो लिवर बायोप्सी का स्कोर है। मेरे ख्याल में ये NAFLD एक्टिविटी स्कोर है जो कैलकुलेट हुआ है थ्रू जो कैलकुलेटर हैं। राइट, इट्स राइट, नॉट बायोप्सी, इट्स नॉट लिवर बायोप्सी नहीं है। ओके, क्योंकि अगर लिवर बायोप्सी हो और उस पे NAS स्कोर मोर देन 5 हो, मैक्सिमम 8 होता है, तो ये डेफिनेट NASH है। और अगर लेस देन 3 हो तो ये NASH नहीं है, फल्ड है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। अगर लिवर बायोप्सी की हो तो NAS स्कोर जो कि जिसमें स्टियाटोसिस और ब्लूरीन चीजें शामिल हैं, उस पे NAS स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और मैक्सिमम 8, 5 से ऊपर NASH, लेस देन 5, लेस देन 3 NASH नहीं है, सिर्फ NAFLD है। सो मैं patient is definite blood sugar is 191, H तो क्लियर हो जाएगा। HDL कम है, L ज्यादा है, सो डिसलिपिडी, अगर हाइपरलिपिडीमिया नहीं तो डिसलिप, B नेगेटिव, C पॉजिटिव एंड CR। सो इसको डुअल लिवर प्रॉब्लम है, NAFLD का और हेपेटाइटिस C। आपने दोनों, इसकी मैनेजमेंट की बात आएगी, एड्रेस करना है। सो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि यू टॉक अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। ये अगर आपको मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप सिर्फ कहते हैं कि एक्सरसाइज कर लें, डाइट की खैर, अगर आप एक बर्गर या सैंडविच तो तकरीबन 500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कैलोरीज को बर्न करने आपको 1.25 घंटे वॉक करनी पड़ेगी और 45 मिनट आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है। लो कार्बोहाइड्रेट, वेट लूजिंग डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते, हम रनिंग, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज की बात करते हैं, जिसमें से मुफ्त सिर्फ रनिंग हो सकती है। और मैं भी यही रेकमेंड करता हूं अपने पेशेंट्स को कि रनिंग, तेज वॉक, जॉग करें और साथ डाइट चेंज कर लें। क्या चेंज? सिंपल तो यही है कि विजिबल है और अवेलेबल है और सस्ती है, वो आप। सो मैं अपने पेशेंट्स को क्या कि आप चावल, दूध, दही, घी, तेल, मीठी चीजें, बेकरी का खाना बंद कर दें और पेट भर के खाएं, लेकिन उबली हुई दाल, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड और फिश, चम्मच सैलेड्स खाएं जिसमें सिंपल डाइट जो कि डुएबल है, सस्ती है, हर एक के घर में मिल सकती है, साथ एक्सरसाइज। सो ये इस पेशेंट को आप विटामिन ई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको NASH है। वैसे जो पिवंस ट्रायल हुआ था जिसमें विटामिन ई यूज हुई थी, उसमें बायोप्सी प्रूवन NASH में दी गई थी, फल्ड सिर्फ में नहीं दी गई थी। लेकिन आप देख, और बाकी फेयरली सिंपल है। डायबिटीज हो तो उसको ट्रीट करें, डिसलिपिडीमिया अगर आपका पेशेंट है तो उसको करें। डिस्पाइट रेज्ड लिवर एंजाइम्स, स्टैटिन्स की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है एंड
everyone should be to use in patient. और फाइनली जब आपका पेशेंट आता है तो उसकी डाइट के अलावा आपने ये काउंसलिंग करनी है कि हेपेटाइटिस सी दूसरों को ना लगे। सो जाती इस्तेमाल की तमाम चीजें जिस पर खून लग जाता है वो अलग रखें, मसलन तौलिया, टूथब्रश, रेजर, कंघी, नेल कटर, हेयर ब्रश। आदमी हाथ ना लगाए, जख्म हो, साथ रहने, साथ खाने, साथ सोने, साथ पीने, ना कपड़े अलग, ना बर्तन अलग, ना मियाँ बीवी एक दूसरे को लगने का चांस इतना कम है कि हम नॉर्मल ताल्लुकात की इजाजत देते हैं। बी की वैक्सीनेशन अगर इस पेशेंट की नहीं हुई है तो जरूर करें। ऑल्दो रियली बीसी और एंटी-एच ये, ताकि अगर नेचुरल वो एक्सपोज्ड है तो एंटी-एच पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो एंटी चाहिए। बट अगर पेशेंट कहता है और सरफेस एंटी तो आप वैक्सीन। और बाकी हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट है फेयरली सिंपल दीज डेज, जो आपको अवेलेबल हो। अगर आप प्रोग्राम में से ट्रीट कर रहे हैं तो इसको सॉफ्ट डेक्ला और राइबावरिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका एप्री 1.8 है जो कि 1.5 से ज्यादा है, और हमारा कट ऑफ 1.5 होता है। सो साउंड में भी माइल्डली कोर्स लिवर है। हमारे पास फाइब्रो स्कैन ना भी हो, लिवर बायोप्सी ना भी हो, तो बात कर सकते हैं कि इसको राइबावरिन ऐड कर दें इन द ट्रीटमेंट रेजिमेंट, और 3 मंथ्स की बजाय सॉफ्ट डेक्ला राइबावरिन 6 मंथ्स के लिए देंगे इस पर्टिकुलर पेशेंट में। और दूसरी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ट्रीट कर रहे हैं तो सॉफ्ट वेल जो भी प्रेपरेशन हो उसके साथ राइबावरिन, बट फॉर 3 मंथ्स ओनली। और क्योंकि आप राइबावरिन दे रहे हैं तो 2 हफ्ते के बाद सीबीसी चेक करें। आई जनरली प्रिस्क्राइब फॉलिक एसिड, क्योंकि हेमोलिसिस तो होता है राइबावरिन से, तो वो उसको लुक आफ्टर पार्शियली कर लेती है। और रिकमेंडेशन आजकल तो यही है कि आप सीबीसी, क्रिएटिनिन, एलएफटीज पे नजर रखें इस पर्टिकुलर पेशेंट में, और पीसीआर, एसवीआर चेक करने के लिए करें। अगर अफोर्डिंग है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो आप 3 मंथ्स एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे भी चेक कर सकते हैं, और एसवीआर चेक करने के लिए 3 to 6 मंथ्स के बाद भी चेक कर सकते हैं। सो एप्री particularly हेपेटाइटिस सी में फिब्रोसिस इंडिकेट करती है। गुड टेस्ट but a poor for inclusion into higher grade of fibrosis. But इसको अगर आप कर ले फाइब्रोसिन के साथ तो बहुत यूज। मैनेजमेंट ऑफ नेफल्ड विद डाइट, एक्सरसाइज, विटामिन ई एंड डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग। के और ज्यादा इन्फेक्ट ना हो। So I'll stop here. Of course, there must be some questions, comments about this. So, Uzair, if you can stop share. Dr. Altaf, आपका I don't know if I'm experiencing आपका जरा वो नेट का I think issue है, थोड़ा सा वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। If you can ये जो वीडियो ऑफ कर लें, मे बी आपकी वॉइस तो ठीक आ जाए कि ब्रेक हो जाती है इन बिटवीन, मे बी कोई आपके अगर वीडियो ऑफ कर लें तो मे बी थोड़ा अब बेहतर आप हो। सुन सकते हैं? जी, वी कैन हियर यू जी। असद, कैन यू हियर? यस, वी कैन हियर यू। अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें तो शायद बेहतर हो जाए उसकी स्ट्रीमिंग। इसमें अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें तो आपकी शायद वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाए। कैन यू हियर मी?
आई थिंक डॉक्टर अल्ताफ ने अपने हेडफोन्स उतारे हैं, तो जिसकी वजह से ही कांट हियर अस. Let me. Uzair, can you hear me? We can hear you, Kiran. Yes, we can hear you. Dr. Altaf, are you with us? Asad, can you hear me now? Yes, we can hear you now. Can you hear me? Yes, yes. So Okay. something was wrong. I don't know what. Anyhow. And we can hear you well. अच्छा, इसमें जो एक चीज मैं सोच रहा था, in such patients, of course, what will happen, क्योंकि अभी हम इनको एंटीवायरल देते हैं, तो ये काफी ये अनयूजुअल नहीं होगा कि इसके LFTs नॉर्मल ना हो. ALT and AST, they remain elevated. So how would you take this in clinical practice? कि maybe अभी इसका जो ALT 101 या इस तरह है, maybe 60-70 के around stay करे, even though we achieve SVR. And how aggressive would you be for the NASH thing, number one? और नंबर 2, HCC सर्वेलेंस के बारे में इनका आपका क्या ख्याल है? हमारे पास एक एप्री की एविडेंस है और हेपेटाइटिस सी से भी ये पेशेंट एक्सपोज्ड होगा, तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट होंगे? ओके, वेल, आई विश कि हमारे पास फाइब्रो स्कैन होता. कहा यह जाता है कि फाइब्रो स्कैन अप फ्रंट की वैल्यू F3 या F4 फाइब्रोसिस की कैटेगरी में है, और अगर ऐसा हो तो टेक्निकली स्पीकिंग लाइफ लॉन्ग, चाहे नेफल्ड हो या ना हो, सी की वजह से सिर्फ अगर F3 F4 है तो लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस चाहिए फॉर HCC. सो इसलिए अप फ्रंट एक फाइब्रो स्कैन की बहुत वैल्यू है. बाद में जब आपने इलाज कर दिया उसके बाद फाइब्रो स्कैन की वैल्यू नहीं है, बिकॉज जो बेस लाइन पे इंपॉर्टेंस है उस पर आप बेस करते हैं फॉलो अप फॉर HCC. सो आई थिंक के अगर हमारे पास वो ना हो और सिर्फ ये वैल्यूज हो तो आई विल कीप हर 6 मंथली अल्ट्रासाउंड एंड अल्फा फीटो फॉर फॉलो अप. मेरा भी यही ख्याल है कि इस पेशेंट के LFTs नॉर्मल नहीं होंगे अनलेस के उसका BMI 40 से 25 पर ना आ जाए या उससे कम ना हो जाए. ये LFTs नॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन विटामिन E एंड वेट लॉस, ये दो चीजें काम करती हैं वेरी वेल टू नॉर्मलाइज द बायोकेमिकल जो फैक्टर्स हैं, LFTs जो हैं वो नॉर्मलाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. सो one has to insist and keep insisting on diet and weight loss, and also vitamin E for at least a couple of years, because Pivens trial में 2 साल के लिए इस्तेमाल हुई थी, तो vitamin E for at least 2 years इसको देनी चाहिए. Thank you. जी, any other question for this patient? हमारे पास अभी we have a couple of minutes before we move on to the next case. असद, आप इस पेशेंट में राइबाविरिन ऐड करेंगे? जी, हम लोग यूजुअली एप्री मोर देन 1.5 में रिबाविरिन सब में ऐड कर रहे हैं. द ओनली ट्रबल इज के जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रिबाविरिन नाउ. ये कुछ महीनों से अब कोई सप्लाई नहीं है, तो वी आर ओनली गेटिंग सॉफ एंड डेक्ला. और ये एक चैलेंज है. बहरहाल हमारे पास चूंकि वी आर परचेजिंग, और कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स की रिबाविरिन जो कि वेल्पाटेस्विर के साथ हमें मिलती है, यूजुअली कंपनीज दे देती हैं उसके साथ, तो उसमें फिर हम रिबाविरिन को थोड़ा यूज कर रहे हैं. और कभी कुछ हमें डोनेशन में मिल जाती हैं, तो वो हम वी हैव टू परचेज रिबाविरिन.
जो हमें पहले मिलती थी वो नहीं है। तो यूजुअली द ओनली थिंग वाज कि अगर ये सिर्फ सॉफ्ट अगर बेल्पेटास्पिर यूज करें तो फिर रिबाविरिन की एडिशन का थोड़ा सा था, क्योंकि आई थिंक जो ईजल वाले हैं और वो लोग वेल्पा के साथ शायद उनका एक्सपीरियंस हमारी तरह का नहीं है, तो दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस अ लॉट। उनके ग्राहम फॉस्टर से भी डिस्कशन हुई थी, तो दे सेड के गो विद Softwell, treatment naive patient hai. Just Agreed. go ahead with Compensated Softwell, it cirrhosis, should be EASL okay. guidelines does not recommend that. So ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम ऐड करते हैं या नहीं करते. I do, because अगर ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपके पास जाएगा तो आप कहेंगे ओहो राइबाविरिन अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता. और अब आप या तो वॉसेवी लें या फॉर 3 months with ribavirin या यही ट्रीटमेंट सॉफ्टवेल लें फॉर 6 months with ribavirin. So मेरा डाउटफुल केसेस में यही होता है कि राइबाविरिन ऐड करके 3 months की सॉफ्टवेल देकर इस एम्बिग्विटी को हमेशा के लिए खत्म कर दें, ताकि वो आपके पास आए, आप कहें कि जी बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट मिली है, अब ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास कि वॉसवी लें या सॉफ्टवेल वॉक्सिलाप्रविर का जो कॉम्बिनेशन है ट्रिपल थेरेपी वो लें, या फिर सॉफ्टवेल ही विद राइबाविरिन फॉर 6 months लें. सो एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई डाउटफुल केसेस में. अगर इसका लिवर नॉर्मल होता, ALT AST रेशियो रिवर्सल ना होता, एप्री लेस देन 1 होता, तो मुझे उसमें राइबाविरिन ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर मैं अपने सेटअप में मैं खुद भी ये यूज करता हूँ एंड आई वुड रेकमेंड वी शुड यूज इट, ताकि ये एक जो एलिमेंट है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए. और हमारे पेशेंट्स टॉलरेट मच बेटर देन वो जो वेस्टर्न पेशेंट्स होते हैं, वो दे डोंट टॉलरेट राइबाविरिन वेरी वेल. शायद वो सेंसिटिव बहुत है, बट हमारे मसाइल ही इतने हैं कि राइबाविरिन हमें क्या टच करेगी. जी, थैंक यू सर. आई थिंक वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. We will keep discussing. Uda sir, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. मैं पूछना चाहता हूँ, ये पेशेंट जो अभी ये डिस्कस हमने किया है, इसको एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एडवाइस करेंगे, डाइट प्लान है, एक्सरसाइज है, जैसे सर ने बताया. एक कैप्सूल वो एंटीओबेसिटी मिलते हैं ऑरलेस नाम के, उनका कोई रोल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ. राइट. वो कितनी देर के लिए देना चाहिए? राइट. अब ड्रग्स जो हैं उनको आप यूज ना करें एक्सेप्ट जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, लाइक लिराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड और नाउ टर्जिपिटाइड. ये आप यूज करें क्योंकि इनका वेट लॉस अराउंड 10 to 25% ऑफ बेसलाइन बॉडी वेट है. ये कहा जाता है कि टर्जिपिटाइड जो कि मोंजोरो के नाम से, लेकिन जब ये अवेलेबल होगी फॉर वेट लॉस तो आपको बाकी दवाइयां और इवन बैरिएट्रिक सर्जरी को भूल जाएंगे. सो ऑरलेस मैंने कभी यूज नहीं की. इट कॉजेस टेरेबल डायरिया, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये डायरिया कॉज करती है बाय इनहिबिटिंग बाय जो पैंक्रियाज की फंक्शन है उसको इनहिबिट करके, तो सीवियर डायरिया और उसके साथ एसोसिएटेड मैल एब्जॉर्प्शन कॉज करती है. सो आई डोंट यूज इट. आप कर सकते हैं, अप्रूव्ड है फॉर यूज, अवेलेबल है, बट आई हैव नेवर एवर यूज्ड इट, नॉट इवन वंस. जी, नेक्स्ट केस प्लीज. जी डॉक्टर मिशाल. जी अस्सलाम वालेकुम. Second case, it's about 12 years old male who's a known case of thalassemia majors since 11 years with history of multiple blood transfusions. He presented with fatigue and body pains. Currently, he's taking tablet Depressirol 400 mg 2 once a day, and tablet ascorbic acid and tablet folic acid.
his routine labs were advised. अच्छा, जो पहली हमारे पास labs available हैं वो 12 सितंबर की हैं, जिसमें HP जो थी वो 6.5 थी, TLC count was 5.1, platelets 132, bilirubin was 1.1, ALT is 232 and AST is 126, alkaline phosphatase is 192. उसके बाद 26 अक्टूबर को इसकी हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग करवाई थी, he was positive for anti-HCV और यूरिया क्रेट नॉर्मल है, बिलीरुबिन 1.3, ALT is 102, AST 106, alkaline phosphatase 178. 10th नवंबर पे इसका PCR पॉजिटिव था और उसके बाद 5th दिसंबर पे जो है HB वो 9.3 है, TLC काउंट 4.1, प्लेटलेट्स 291, यूरिया 37 है, क्रिएटिनिन 0.6, बिलिरुबिन 2.6, ALT is 490, AST 381, alkaline phosphatase 237 है, ब्लड शुगर 89. इसका एप्री जो कैलकुलेट किया वो 3.3 है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था. Now how to manage this case? Right. First thing, let me acknowledge that I've never treated a child with hepatitis B or C. Anyhow, but I would like to highlight some issues. This is a 12-year-old thalassemia major requiring blood transfusion as they normally do since birth, literally. और इसकी वजह से इनमें आयरन ओवरलोड होता है, जिसके लिए उसको आयरन चिलेटिंग एजेंट दी जा रही है, एस्कॉर्बिक एसिड दी जा रही है और फॉलिक एसिड दी जा रही है. लैब्स में अगर आप देखें, एज एक्सपेक्टेड हीमोग्लोबिन लो है, प्लेटलेट्स आर गुड 291, ALT 490, AST 381 और अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो बच्चों के हिसाब से ये नॉर्मल है. Hep B surface antigen negative and anti-HCV and PCR positive. So straightforward hepatitis C का केस है. Definitely इसके लिवर में आयरन ओवरलोड होगा बहुत ज्यादा और AST ज्यादा होने की वजह ज्यादा है AST, इसलिए एप्री स्कोर बिकम्स अनरिलायबल. हिमोलिटिक सिंड्रोम्स में एप्री को यूज ना करें क्योंकि AST इनअप्रोप्रिएटली हाई होगा. ये सिर्फ एप्री स्कोर प्योर हेपेटाइटिस सी में इस्तेमाल करें. हीमोलिटिक सिंड्रोम्स या हीमोग्लोबिनोपैथीज में इसको इस्तेमाल ना करें. So I will ignore APRI score in this particular patient. Fibroscan can still be done, although liver ultrasound is showing a normal scan. Now, how do we treat a 12-year-old thalassemia major? पहली बात, treatment approved है इस age में और इस बीमारी के साथ. The answer is yes. अब 3 ट्रीटमेंट्स, सॉफ्टवेल, सॉफ्ट लेडिपेसविर जो हार्वोनी के नाम से आती है और ग्लिकाप्रेविर पब्रेंटास्विर जो कि जीपी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं. ये 3 दवाइयां अप्रूव्ड हैं इन चिल्ड्रन हु आर 3 years और ओल्डर. इनके डोज का प्रॉब्लम है बिकॉज डोज इज गिवन. अब मैं जीपी को और हार्वोनी को भूल जाएं, हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेल है. इसकी डोजिंग कैसे करनी है? डोजिंग इज बेस्ड ऑन वेट. अगर 17 किलोग्राम है या लेस है तो इसका डोज जो होगा वो हाफ होगा. 200 सफास्पाविर एंड 50 मिलीग्राम ऑफ वेलपाटास्विर. सो नॉर्मल जो डोज है वो हाफ हो जाएगा. बाहर ये डोज मिलता है, टैबलेट इज अवेलेबल, प्लस वहां पे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं
जिसमें 50 मिलीग्राम सोफॉस्पावेर और 12.5 मिलीग्राम वो वेल्पाटास्वेर होती है. सो आप वो लो डोज टैबलेट पूरी दे सकते हैं, या अगर बच्चा छोटा है वो टैबलेट नहीं खा सकता तो वो ग्रेन्यूल्स, अगर उसका वजन 17 किलोग्राम से नीचे है तो उसको आप रिड्यूस डोज में दे सकते हैं. 17 to 30 किलोग्राम सेपरेट डोज है और 30 किलोग्राम के बाद फुल डोज है. फुल डोज एडल्ट डोज है. सो 30 किलोग्राम any age between 3 to 12 years or 3 to 17 years, let's take it as a whole group. अगर more than 30 kilogram है तो 400 सोफॉस्पावेर and 100 milligram वेल्पाटास्वेर. So ये ट्रीटमेंट तो देनी है, अप्रूव्ड है इस एज में. सॉफ्टवेल आपके पास अवेलेबल है, डोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नोमोग्राम वेट, और उतना डोज उसको दें. ड्यूरेशन 3 months. इस पर्टिकुलर पेशेंट में राइबाविरिन अवॉइड करनी चाहिए. अगर ये पेशेंट सिरोटिक भी होता तो इसको आप 6 months की तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन राइबाविरिन नहीं देंगे क्योंकि इसकी ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी. सो इन शॉर्ट, थैलेसीमिया मेजर 12-year-old hepatitis C should be treated with Softwell in appropriate dose according to weight. और इसका नोमोग्राम चार्ट अवेलेबल है कि, लेकिन ये याद रखें कि लेस देन 30 किलोग्राम डोज रिड्यूस करना पड़ता है, मोर देन 30 किलोग्राम डोज फुल दिया जाता है. अगर मिशाल आपको पता है इसका वजन कितना था? सर नहीं, वेट नहीं मुझे इसका जो वेट था, ये हमने डिस्कस भी थोड़ा सा किया था. ये अगेन हमारे ट्रस्ट का पेशेंट है. दिस वाज गेटिंग ट्रांसफ्यूजन्स फ्रॉम सम कोई चैरिटी थी उनके साथ ऑन ट्रांसफ्यूजन, और ही हैड हेमोलिसिस, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया था, एंड वेट वाज 40 kg. और इसको सॉफ और वेल्पाटास्वेर जो है, we arranged Softwell because we have soft decla from the Punjab program, लेकिन वो फिर भी didn't prefer. I had a discussion with Professor Javed Iqbal Farooqi, and he had an experience of treating 3 children with soft deck. But once Softwell was available, that was a time when Softwell was not available. जब Softwell available हो गई पाकिस्तान में, उसके बाद he never treated anybody with Soft and Decla. So we arranged some funds for this boy, and he has been started on Soft and Velpatasvir in full dose, 400 milligram of Sofosbuvir and 100 milligram of Velpatasvir. And I'm expecting to see him, I think, this Friday, क्योंकि इसके 3 or 4 weeks हो जाएंगे, तो उसको कहा था कि एक दफा. So we are very hopeful कि इंशाल्लाह, because Farooqi Saab has had 100% results on children. Right, agreed. इनके results बहुत अच्छे हैं children में. The problem with thalassemia patients is कि इनकी screening proper तरीके से blood जो इनको लगता है वो नहीं होती. ये रैपिड मेथड से बी और सी चेक करते हैं. सो इस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी हुई तो वैक्सीन पे इंसिस्ट करें, उसको जरूर दें. और दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब लगे तो एट लीस्ट एलाइजा से बी और सी जो है ना ब्लड वो चेक हो. रेकमेंडेड तो ये है आजकल जो सारी सोसाइटीज हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो ये रेकमेंड करती हैं कि कोई एंटीजन टेस्ट जरूर होना चाहिए या पीसीआर होना चाहिए, क्योंकि एंटी-एचसीवी नेगेटिव हो सकता है और पीसीआर पॉजिटिव हो सकता है. जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि एक रीसेंट इन्फेक्शन है, आज ही
वायरस जिस्म में गया है, 2 हफ्ते के बाद चेक करेंगे, anti-HCV will be negative और PCR will be positive. So anti-HCV is not recommended. जी असद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों को. आई हैव बीन टू दिस फाउंडेशन. आई थिंक दे आर प्रीटी मेटिकुलस, लेकिन वो जो विंडो पीरियड के हैं, और फिर इसी तरह हेपेटाइटिस बी में भी सिर्फ सरफेस एंटीजन चेक होता है, कोर आईजीजी चेक नहीं होता, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है, बिकॉज जो कॉस्ट है फिर वो बहुत हाई चली जाती है, स्पेशली and especially these children who are on recurrent transfusion. So is there any other question? Uzair, आप stop share करें. Let's open up the discussion. It's a very interesting case. I mean, to be very honest with you, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देखे. जी, any question or comment? हमारे पास thalassemia और hepatitis C और NASH, obesity and hepatitis C, तो इसमें from the audience. इसमें जो पेशेंट जाएंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ, अगर तो उसकी कोई आपके इल्म में है गाइडलाइन के the C need to be taken care of first, or you know? No, अगर आपने हेपेटाइटिस सी ट्रीट किया हुआ है और वो नेगेटिव है, और इवन आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो पॉजिटिव भी हो जाता है हेपेटाइटिस सी, तो आजकल तो ट्रीटमेंट इतनी आसान है. सो अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो भी जाएगी तो उसको मैनेज किया जा सकता है आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट. सो नो इश्यूज. सर मैंने पूछना था कि हम मिनिमम किस एज में एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को? जैसे मैंने कहा कि अब अप्रूवल, FDA का अप्रूवल है 3 दवाइयों का, हार्मोनी, सॉफ्टवेल और जीपी, ग्लिकाप्राविर, पेब्रेंटासविर, ये 3 दवाएं 3 इयर्स ओल्ड. सो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और माँ पॉजिटिव थी उम्र में, और अगर 1.5 साल की उम्र में पॉजिटिव आ जाता है, तो या 1.5 साल के बाद किसी वक्त भी 1.5 साल में चेक ना करें, क्योंकि वो पैसिव ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी. सो आप 1.5 साल की उम्र पे उसका टेस्ट करें anti-HCV, और अगर वो पॉजिटिव है तो PCR चेक करके 3 इयर्स और बियॉन्ड आप इलाज कर सकते हैं. डोज का मैंने आपको बताया, सिर्फ इशू है जो FDA की रिकमेंडेशन है और जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन है, उसके डोजेज स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है बेस्ड ऑन वेट. अगर आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो मोर देन 30 kg है, फिर एडल्ट डोज सिंपल, सो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. सो 3 years plus can be treated. जी, any other comment or question? ठीक है, Kiran, if there's no further question, over to you. थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू डॉक्टर अल्ताफ. आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारी जो डाइजेस्टिव एको का प्लान सेशन है फरवरी में, उसको अभी हम मार्च तक पोस्टपोन कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारा IBD एको सेशन आ रहा है. डॉक्टर तौसीफ अली हैं फ्रॉम ओक्लाहोमा, वो हमें 22 फरवरी को 10 PM का हमारा सेशन प्लान है, और जो ही इसका बैनर तैयार होता है तो वी विल शेयर विद यू, ताकि आप सब रजिस्टर कर सकें. इसके अलावा वंस अगेन, अगर आप लोगों के पास कोई अपने केसेस हैं जो आप चाहते हैं कि हम इसमें इंक्लूड करें इन सेशंस में, तो आप हमें दे सकते हैं. हम आपको फॉर्मेट इसका दे सकते हैं जिस तरह उसको प्रेजेंट करना है, या अगर आप केस हमें दें तो हम उसको अपने फॉर्मेट की तरह में ढाल के इसको पेश कर सकते हैं. और we are very grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology, Ferosens Laboratory Limited for unrestricted educational grant.
our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan and our expert. So Allah Hafiz from now on. Uzair, you can call off the meeting. 1 मिनट में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ. मैंने चैट पे देखा है कि 12 years का लिखा गया है कि अप्रूवल यस. 2019 में 12 years प्लस का अप्रूवल था. 2021 में 3 दवाइयों के लिए 3 years प्लस का अप्रूवल है. और ASLD की गाइडलाइंस जो अपडेटेड है उसमें 3 years प्लस एंड वेट को कंसिडर करते हुए डोज भी रेकमेंड किया गया है. सो यस, 2019 में 3 years and beyond according to weight. सर आपने वेट का जिक्र किया था कि लेस देन 17 kg में हाफ डोज देंगे और मोर देन 30 kg में फुल. तो ये जो 20 kg है इसमें कितनी डोज बनेगी? सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर गया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे को मैंने कभी ट्रीट नहीं किया, लेकिन डोजेज मैंने अभी जरूर चेक की है. लेस देन 17 किलोग्राम जो है वो 150 ऑफ सोफॉस्बाविर एंड 32.5 मिलीग्राम ऑफ वेलपटास्विर. जो 17 to 30 मिलीग्राम है वो 200 और 50, और जो 30 किलोग्राम से ऊपर है उनका फुल डोज 400 and 100. सो अब ये क्लियर हो गया. 3 कैटेगरीज और ये SLD गाइडलाइंस में दिया हुआ है. So this patient should have got a half dose. इसका वेट This is 40 kg. 40 kg. Okay. This boy was 40 kg, so he went on to have full dose. So we were lucky in that sense. क्योंकि otherwise I don't know जो हमारे पास करंट फॉर्मुलेशन है वेल्पा और सॉफ्ट की, उसको अगर हम आधी गोली करेंगे तो वो इवनली डिवाइड होगी कि नहीं होगी. आई एम नॉट श्योर. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड. Thank you, sir. Thank you. Any other question or comment? अभी हमारे पास है time if you want. I think we can call off the session. Uzair, over to you. Thank you, ma'am. Till next time. Allah Hafiz to all of you.